So let's get right to it, sir. What is your balancing mantra between financial health and wellness? So, ma'am, before answering your this is first question, I have some my expression, my gratitude towards you. So, first of all, on behalf of all Jaipur, welcome in our pink city in pink weather. So, ma'am, we are your fans since 1994. 84, it couldn't be because I was in school, you mean 94. So, your this is serial Shanti. 94. Yeah, so Yes. 94. So many times, repeated way, in a recorded way also. So, ma'am is a versatile actress, sports lover, and one thing I would like to mention in my specific, you are very optimistic. So, thank you very much. But isn't that the only way to live life? With Yeah. optimism, Yeah. with positivity? Yeah. Isn't that the only way to live life? Yes. It is, right? Yeah. So you can say how much big fan we are. So that Thank you for your very kind words. Thank you so much, Mr. So we are Sethi. honored, and I am personally feeling very glad to share this platform with you. And now you're coming to this question on this balancing. So we can say in this way, like when we talk about financial health. So financial health, we have to first to build up your financial health. For that, you have to start some career. You have to take right education. You need right direction. Destiny is always there, but need proper efforts, proper line of actions, so that way you build your finance health. Now point comes how you maintain your this is financial health. So we learn so many things from our childhood. First thing is, like we always, first chapter is save your money. I also mantra this mantra. Earning the asset, earning the finance, earning the wealth is easier. To save your wealth is difficult. So first point is we should save things in a very planned way. Because now in our journey, you have to pay your housing loan, you have to send your children to for higher education, you need money for your bedtime, to say in our language, in financial language, is contingency fund. So in this fund, you always required money whenever you need in emergency. So this is the financial wealth we can calculate in this way. So other now point is what is the balancing between your finance, health, and this is wellness. So wellness, I think it is mix of everything. So in my point of view, wellness comes, first thing is again, your physical health. Number two, it is, we can say it is your mental health. Third is again finance. Actually, mental health and financial health are interconnected. Yeah. बिकॉज आप रात को चैन की नींद तब सो सकते हैं जब आप जानते हैं कि आपके बैंक में पैसे हैं Yes. एंड योर मनी इज वर्किंग फॉर यू Yeah, yeah. सो फाइनेंशियल हेल्थ कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू मेंटल हेल्थ Very interdependent. Very interdependent. Fourth, we can say in this point, like sometime, these are things we learn. Sometime you lost your connection with your society, your family. I think in wellness, fourth point also, how your social network is. वेरी इंपॉर्टेंट Yeah. And fifth, I will say in the point of view, what is your environment? So environment is, we can say in environment, we cover all the things, nature, physical environment, mental environment. So in environment, we can cover all these things. So if any vertical, कोई भी उसमें एक vertical भी if we get disturbed, तो wellness come on the question. So every wellness point, कहीं भी आपको एक पॉइंट पे प्रॉब्लम आई, हेल्थ पे हुई, तो हमें वहाँ हेल्थ पे हमारी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि हैबिट को चेंज करेंगे तो एक्शन बनेगा. तो फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उस प्रॉब्लम पे एक्शन करना है, और बैलेंसिंग में अगर आपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है तो बॉस आपको ऑफिस में मारेगा, और अगर आपने सिर्फ फाइनेंस पे फोकस किया हुआ है और हेल्थ पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते इट हैं. ऑल वर्क्स टुगेदर So all 5 verticals of this is wellness, interdependent.
we should take care all the things in a very balanced way. Result would be our wellness. So wellness means your ultimate happiness. Very nicely said. आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स शेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ से जहाँ पे आपने मेंटल इमोशनल हेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियल हेल्थ का बैलेंस निकाला है और मतलब ढूंढा है। और दूसरी बात ये आजकल ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली कॉर्पोरेट लाइफ में, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सो मेंटल स्ट्रेस आता क्यों है? मेंटल स्ट्रेस इसलिए आता है कि आप उस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं होते हो। तो कोविड आपने जैसे एग्जांपल लिया, कोविड इज़ आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल। और आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में मेंटल स्ट्रेस तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर बिजनेस और योर एनी सोशल मैकेनिज्म। तो मैं इस पर एक सब्जेक्ट उठाता हूँ कोविड का, क्योंकि कोविड इज़ वेरी रिसेंट एग्जांपल कि आपका उस समय मेंटल स्टेट ने किस तरह से हेल्प किया। तो वन फाइन डे कि वी ऑल गॉट नो कि नाउ एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, आप घर पे हैं, आपके 5000 एम्प्लॉइज़ सब लोग अपने अपने घर पे हैं एज ए चीफ ऑफ कंपनी। फिर आपका बैंक अकाउंट पता नहीं कहाँ है, फिर आपके 3 लाख कस्टमर, उनकी क्या पोजीशन होगी। अब हम हमारे कस्टमर जो है वो उन कस्टमर को करते हैं जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, दीज आर टियर 2 टियर 3 सिटी कस्टमर्स। अब उन कस्टमर को जब आपने एक साइकिल में देखा तो यू कैन अंडरस्टैंड एज ए चीफ ऑफ कंपनी आपकी पोजीशन क्या होगी। और आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी कंपनियां बनाई हैं, आपने ब्रिक बाय ब्रिक कंपनी को बिल्ड किया और आप ही रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो उस सिचुएशन में आई थिंक मेंटल स्ट्रेस को अवॉइड करके आपने सबसे पहले तो अगेन वही वेलनेस वाले पॉइंट पे आपने फर्स्ट अपनी मैनेजमेंट टीम से बात की कि भाई लोगों अब क्या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद उनके इनपुट्स लिए, फिर आपने देखा कि अब कोविड तो सबके लिए हुआ है, अब हमारे एम्प्लॉयज़ की मेंटल स्टेट क्या होगी। तो हमने एक मैडम डिसीजन लिया कि हम कोई भी किसी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं करेंगे और किसी की भी सैलरी को डिडक्ट नहीं करेंगे। तो आपको उस समय 2 आपके पास चॉइस थी कि वंस इज यू हैव टू सेव द मनी, यू हैव टू कम आउट बिकॉज ये मनी मुझे चाहिए, मेरी फैमिली को चाहिए, क्योंकि कोविड तो अनसर्टेनिटी था। लेकिन आई थिंक दिस वाज द मेंटल स्टेट कि आपने किस मेंटल स्टेट पे वो डिसीजन लिया। देन उसके बाद आपको फिर उस पर एक्शन करना था। तो उस एक्शन को आपने फेज़ बाई फेज़ इम्प्लीमेंट किया। टीम घर पे है, आप ग्राउंड पे जा नहीं सकते हैं, तो आप रोज़ बात करते हो। अब रोज़ बात करते हो, रिजल्ट इज़ ज़ीरो कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन एक समय जो है ना अपने आप मेंटल स्टेट यदि आपका स्टेबल है तो टाइम उसको हील करता है। सो जब इस पूरे आप सर्किल से निकले तो हमने देखा कि इतनी मजबूती से आपने इस टाइम को कैसे निकाला। तो उसका एक आंसर हमें खुद को ही मिला, क्योंकि इस तरह की मेंटल स्टेट पहले भी हम कई बार उसको, छोटी थी वो, उनको लेकिन हम फेस कर चुके हैं। तो मेरा इस पे ये कहना होगा कि आपको कोई भी चैलेंज के लिए मेंटलिटी आपको ऐसी रहनी चाहिए कि चैलेंज शुड कम एट एवरी साइज, लेकिन इतना आना चाहिए कि आपको बिल्कुल ब्रेक नहीं कर दे, एंड यू शुड बी अडॉप्टेड फॉर दैट इवेंट सक्सेसफुली। पर चैलेंज से ही आप कुछ सीखते हैं, फेलियर से, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लोग सीखते हैं, इजी सिचुएशन से कुछ सीख तो होती नहीं है वैसे। एंड योर दिस इज वन सेकंड पॉइंट वाज कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब इसको देखिए, मेंटल स्टेज और स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा इसमें फ़र्क है। स्ट्रेस क्यों आता है? स्ट्रेस ही आता है कि जब आप किसी भी चीज़ में, शायद ऐसा होता है कि बॉस ने काम दे दिया और आपकी कैपेसिटी नहीं है तो स्ट्रेस आ जाएगा। काम करने की इच्छा नहीं है तो भी स्ट्रेस आएगा। ज़्यादा स्ट्रेस उसी वजह से आता है कि जब काम करने की इच्छा नहीं होती है। और जब काम नहीं होता है तब भी स्ट्रेस होता है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं, इनफैक्ट कोविड सिचुएशन में जब लोग मुझसे बात करते थे बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, मैं कहती हूँ 1 मिनट, आपकी नौकरी है ना, यू हैव अ जॉब, यू शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड, बिकॉज काम ना होने का भी स्ट्रेस होता है। ट्रू। तो अब उसको स्ट्रेस को जब हम टीम से बात करते हैं
तो मेरे ख्याल में मेरा मंत्रा ये है कि स्ट्रेस में आपको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, चाहे वो स्ट्रेस आपकी फैमिली में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो। आप बात करेंगे, ट्रांसपेरेंट होकर बात करेंगे, तो पहला सॉल्यूशन तो वो मिल जाएगा। इन प्रोफेशनल लाइफ हमने देखा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का ये भी तरीका है कि आप टीम को छोटे गोल दीजिए। छोटे गोल देंगे तो वो विन करेगा तो उसका स्ट्रेस अपने आप ही रिलीव हो जाएगा। थर्ड, आप एनवायरनमेंट इस तरह से क्रिएट करिए। एक एनवायरनमेंट का भी फ़र्क होता है कि आपने एक बार किसी को ये बोला कि साहब ये काम आपको करना है, ठीक है, इतने टाइम में करना है, और 1 मिनट के लिए उससे ये पूछ लीजिए कि यार ये काम तुम्हारा कितने टाइम में हो जाएगा। देन यू कैन गिव नेक्स्ट बॉर्डर लाइन कि साहब नहीं, इतना टाइम नहीं, बिकॉज आपको यदि काम करवाना है थोड़ा तो स्ट्रेच करना पड़ेगा। थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेस तो आएगा। सो यू हैव टू बी लिटिल बैलेंस बोथ द थिंग्स एंड गिविंग ए राइट डायरेक्शन, राइट एनवायरनमेंट, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इट इज़ ईजिली पॉसिबल। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं ना? बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने अभी शेयर किए। मिस्टर सेठिया, बीइंग अ रिनाउंड एंटरप्रेन्योर, आपको क्या लगता है ऐसे वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट के लिए क्या सब तैयार हैं? कितना लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है आप में, और आपको लगता है जयपुर में क्या मैसेज है जो आप देना चाहते हैं टू जयपुर, यू नो, विद दिस वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट? मैडम, सबसे पहले तो आप मंदिरा जी यहाँ पे हैं, इससे बड़ा एक्साइटमेंट तो क्या होगा। So we have great sessions yesterday, today with you, before you, अच्छे पैनलिस्ट आए। हमें 2 तरह से एक्साइटमेंट हो रही है कि एक तो हमें ये सेशन मिल रहे हैं कि आप यदि बीमार हो जाएं तो आपको ठीक कैसे होना है, और एक आप बीमार नहीं पड़िए, चाहे वो मेंटली yes. और चाहे आप फिजिकली। तो दिस विद टू, हमारा ये फर्स्ट टाइम वी हैव एसोसिएटेड विद WF। सर का काम हमने बहुत बार देखा, हम वैसे इनके पर्सनल बहुत बड़े फ़ैन हैं मिश्रा साहब के। तो जब हमें फर्स्ट ये ऑफ़र मिला तो हम सर के पास ही पहुंच गए कि थैंक यू वेरी मच, वी आर ऑनर्ड टू एसोसिएट फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉज, जो हमारे जयपुराइट्स जो है उससे सब वेलबींग उनका होगा। तो एक्साइटमेंट तो इज़ ए फुल ऑफ स्विंग एंड लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे शायद ये एक मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे कि कई बार क्या हम सुनते हैं लेकिन सुन के बाहर जाके उसको भूल जाते हैं। तो इट से कि बहुत लर्न पीपल ने आज जो है मैसेज दिया है, आप जैसे लोग जो आप आए हैं, कि हम उसको थोड़ा हमारी मेमोरी में उसको स्टोर करें, उसको कहीं ना कहीं रिमाइंड करते रहें और उसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो यही हम जयपुर वालों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना भी हमने 2 दिन में सीखा उसको अपना एग्जीक्यूट करें, चाहे योगा है। यहाँ बैठ के फिर सिर्फ सुनना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है कि नहीं? अडॉप्ट इट। करेक्ट। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस, इसकी इतनी बात होती रहती है, खासकर जब एम्प्लॉयज़ वेलनेस की बात की जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस का ये जो मतलब इम्पोर्टेंस ये पिछले 2-3 साल में ज़्यादा हुआ है। वर्क लाइफ बैलेंस, लोग घर से भी काम कर रहे थे तो थोड़ा मतलब लाइफ का बैलेंस उस तरफ जा रहा था। तो क्या कहेंगे आप अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस बीइंग वन ऑफ द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वेलनेस? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी में होते हैं तो कुछ चीज़ें तो लाइफ में कंप्रोमाइज़ होती हैं, लेकिन इसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक लास्ट फ्यू ईयर्स आई एम पर्सनली वर्किंग ऑन दिस, कि जब आप, मेरे ख्याल में वर्क लाइफ बैलेंस में एक सिंपल फार्मूला जो मैंने समझा है कि जब आप काम पे हो आप काम पे फोकस करिए, लेकिन जब आप काम से ऑफ हो गए तब आपका वो टाइम आपका होना चाहिए। लेकिन हम लोगों के कई बार कल्चर में है कि जैसे आप मेल आपके पास आ जाए, कोई मैसेज आया, व्हाट्सएप आ जाए, अगर आप गोवा में छुट्टी मना रहे हो तो आप एकदम उसको देखेंगे। मोबाइल आपके पास नहीं होगा तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे आपके साथ आपकी लाइफ नहीं है। तो दैट इज़ नॉट वर्क लाइफ बैलेंस। सो व्हेन यू आर वर्क 100% focus on your work,
when you are on holidays, when you are with family time, then you are off. तो इवन मॉर्निंग में भी आप उठते हैं, उठते ही आपको फर्स्ट आप मोबाइल देखते हो कि मोबाइल में ऐसा कोई रात को 12 बजे आप सोए हो और सुबह उठ के 7 बजे 6 बजे आप मोबाइल देखते हो. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली नॉट वर्क लाइफ बैलेंस. यू स्टार्ट योर डे विथ डिफाइंड टाइम, क्लोज योर डे with defined time. I think that is the mantra should be of your work-life balance. And other points we can discuss. There are 100 things कि आपको घर में है, आप क्वालिटी टाइम, अब क्वालिटी टाइम के कई सारे क्वेश्चंस हैं कि हाउ यू स्पेंड टाइम विद योर किड्स, हाउ यू स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स. कई बार ये होता है कि आपका क्वालिटी टाइम इससे भी होता है कि आप अपने पेट्स के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें आई थिंक अगर आप सुबह चार्ज होके सुबह अपने काम पे आएंगे तो बॉस भी कुछ नहीं कहेगा, काम में भी परफॉर्मेंस आएगी और वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो शायद आपके चेहरे पे दिख जाएगा. Sir, what is the one thing you feel that can be better connected with CSR intervention from SK Finance? देखिए सब CSR जो है, सो CSR बिकॉज इट इज़ वी आर रेगुलेटेड कंपनी, सो CSR वी हैव टू डू बाय लॉ. लेकिन मैं ऐसे अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने कुछ चीज़ें हमारी फैमिली से सीखी है कि मेरे ग्रैंडफादर जो है, हमारे फादर साहब ने उनके ऊपर अभी एक बुक भी लिखी है, वो बुक लॉन्च हुई है अभी 1 महीना पहले. तो वो अपने टाइम में जो भी उनकी सेविंग थी वो गुरुद्वारे जाया करते थे और गुरुद्वारे में मुझे याद है अपने चाइल्डहुड में वो एक आटे की कटोरी लेके वो गुरुद्वारे में वो दिया करते थे. तो आपको कल्चरली चीज़ें तो आपने वहाँ से शायद टेकअप की, लेकिन जब आपको मौका मिला कि एज ए कॉरपोरेट CSR करने का, सो वी ऑप्टेड आउट सब्जेक्ट की जो बहुत ही आपका प्रायोरिटी है. तो प्रायोरिटी में दीज आर 2 सब्जेक्ट्स आर वेरी क्लोज टू अवर हार्ट वी हैव टेकन. One is women empowerment. Other thing is your child education and their health. अब इन दोनों सब्जेक्ट में भी क्योंकि CSR में इतना काम हो रहा है, ठीक है, तो आपको कई बार उसका इम्पैक्ट असेस नहीं होता है. तो हमारे वर्टिकल्स ने जो वर्टिकली CSR को देखता है, उन्होंने अभी तक 265 वुमेन को ट्रेंड किया, उनको काम दिलवाया और काम दिलवाने के बाद उनका हमने ये जज किया कि इनकी लाइफ के उसके बाद चेंज क्या हुआ. कि ऐसा तो नहीं है कि हमने काम दिया, वो पैसा उनके पास नहीं रह रहा, उसके स्पाउस के पास जा रहा है. नो, हमने उनका अकाउंट ओपन करवाया, जो भी उनकी आपकी अर्निंग है उनके अकाउंट में जानी चाहिए, उनको रेगुलर काम मिलते रहना चाहिए. तो आपने उनके पूरे साइकिल पे काम किया. आई थिंक वन पार्ट इज CSR इज मॉनिटरी, अदर इज ऑल पीपल. हमारे जो लोग हैं वो लोग जो हैं उस पूरे काम में पूरा इन्वॉल्व होते हैं. इट्स नॉट माई वर्क, इट्स नॉट माई फैमिली वर्क. हमारी मैनेजमेंट टीम अगर उस एरिया में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक वुमेन का आपका क्लस्टर बना हुआ है, वहाँ का लोकल जो बिजनेस लीडर है वो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, क्योंकि वो बहुत क्लोजली उनकी रिक्वायरमेंट को समझता है. तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस CSR वर्क को भी एज ए प्रोफेशनली उसी स्किल से चला रहे हैं कि जैसे आप कंपनी को चलाते हो. एंड आई विल आल्सो 1 मिनट विल टेक कि एक प्रोजेक्ट लिया हमने ऑटिज्म. तो ऑटिज्म जो आपने जो बच्चे जो हैं जिनका जेनेटिक प्रॉब्लम रहता है, तो 6 साल पहले यहाँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें चांस मिला, हमें 10x10 एरिया मिला है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि खाली आप अपना सेंटर यहाँ पे चला सकते हैं विद सम लिमिटेशन. लेकिन हमने वहाँ के डॉक्टर साहब को, उनके डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से कन्विंस किया कि वी आर हैव गुड इंटेंट वर्किंग विद यू. तो सर का बोलना क्या कहना था कि अब मेरा रिटायरमेंट है 31 मार्च को, अब आप अपना नेटवर्क अपने हिसाब से चलाइए. तो हमने डॉक्टर साहब को बोला कि साहब 31 मार्च को मेरी गाड़ी आपके हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होगी,
हम आपको अपनी गाड़ी में बिठाएंगे और यही ऐसा एक सेंटर आपको प्राइवेटली लीड करना है। तो वो डॉक्टर साहब, उनका नाम मैं भी लेना चाहूँगा, वो डॉक्टर सीतारमन साहब हैं। वो डॉक्टर साहब ने हमें ऑप्ट किया, हमें सेंटर को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। आज उस पर पर मंथ अप्रोक्सीमेटली 1000 चिल्ड्रन नॉट फ्रॉम जयपुर, पूरे राजस्थान से, और कई बार वो ये भी बोलते हैं कि साहब कई बार एमपी से, मध्य प्रदेश से भी बच्चे आते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर साहब का नाम ही इतना है। और प्लस उस सेंटर में बहुत डिटेलिंग की हुई है कि किस तरीके से आप बच्चों की, इन बच्चों की आप थेरेपी दे सकते हैं। तो उसमें भी हमारी टीम कि जैसे किसी का इंटरेस्ट है कि साहब मैं इन बच्चों को थेरेपी देने में आई वांट टू हेल्प, तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसे संडे है तो संडे में आप कुछ टाइम के लिए वहाँ जाइए, इस तरह का इनिशिएटिव धीरे धीरे शुरू किया है। तो वो जो आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंप्लीट साइकिल है, आई थिंक दैट इज़ कमिंग आउट इन दिस वे। वी आर ट्राइंग हार्ड and God is also graced to support all this opportunity. Yeah. So this way we are managing all this CSR work. Thank you, Mr. Sethia. Where do you think that corporates can play an important role for health and wellness aspects in society? आपका हेल्थ एंड वेलनेस सोसाइटी में आई थिंक कॉरपोरेट्स को थोड़ा और आगे आना चाहिए, क्योंकि कॉरपोरेट के पास एक तो सब फाइनेंशियल मसल्स होता है, दैट इज़ वन थिंग। आपको लॉ अलाउ करता है वो पैसा खर्च करने के लिए, मैनेजमेंट है, स्किल है, आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपका कोई भी कॉरपोरेट है, उसका अपना एक डिज़ाइन होता है, एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होते हैं। तो कॉरपोरेट यदि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा तो उसका आउटपुट ज़्यादा आएगा। इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे, उस अवेयरनेस प्रोग्राम को वो उसकी रीच, क्योंकि अपने उसके पर्सनल टीम भी है, उससे उसके थ्रू ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड प्लस कॉरपोरेट अपने आप में, एक अच्छा कॉरपोरेट के यहाँ पे 25,000 से 50,000 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोग जुड़े हुए हैं। यदि हमने उनकी भी केयर अच्छे से कर ली तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट का एम्पलीफायर की तरह वो काम करेगा। सो यू आर गिविंग देम मैसेज कि आप अच्छा करिए, कंपनी अच्छा कर रही है, और वो लोग भी फिर आगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी में उसी तरह से कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट कम इन ए मल्टीपल वे। या एंड फाइनली सर, लास्ट क्वेश्चन, आपका क्या मैसेज है हमारी युवा पीढ़ी के लिए? व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द यूथ ऑफ टुडे? तो मैम, पहले तो हम भी थोड़े अपने आप को युवा ही समझते हैं तो इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग आवर टीम, जयपुर से सब लोग जो आए हैं, तो युवा से तो हमें सीखना है। आज के युवा को हम जो है ब्रॉड मैसेज तो दे सकते हैं कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करिए, गलतियां करिए, लेकिन गलतियों को रिपीट मत करिए। क्योंकि गलती नहीं करेंगे ना, तो फिर चाहे वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की बात किया या रिस्क लेने की बात की, वो सब नहीं हो पाएगा। माई स्टेटमेंट फ्रॉम ऑन दिस प्लेटफॉर्म वुड बी कि युवा हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी कंट्री की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो हमारी कंपनी में मैम एवरेज एज जो है एम्प्लॉय की वो 26 साल है। ये जो मिलेनियल्स है ना, हाँ जी, उनकी बात कर रहे हैं आप उनको खुश रखना बहुत मुश्किल है। यस यस, मैं ये कहना चाहती हूँ आज की युवा पीढ़ी के लिए कि खुश रहो। यस, दे शुड बी हैप्पी, हैप्पी, यस। वेल, थैंक यू वेरी मच, इट वाज लवली हियरिंग फ्रॉम यू। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और आप भी बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं, और आप इतना कुछ कर रहे हैं अपने फाउंडेशन के थ्रू। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ आ सकी और आपसे मिल सकी और इस प्रोग्राम का मैं हिस्सा बन सकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारा एक क्वेश्चन होगा आपसे, ठीक है? हालांकि आप अपना सेशन देंगे, आपकी फिटनेस का जो है ना, मैंने आपसे बारी पूछा, थोड़ा पब्लिक भी सारा सुनना चाहेगी। फिटनेस का
क्या क्या राज है, क्योंकि हम आपको बहुत सालों से देख रहे हैं कि आप बिल्कुल मेंटेन है। एक्चुअली राज ये है कि कोई राज है नहीं, सबको पता है जो फिट रहते हैं कि इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपको एक्सरसाइज मतलब हफ्ते में 1-2 बार नहीं करना पड़ता है, हफ्ते में 5-6 बार करना पड़ता है, और अच्छे से खाना है आपको। ये नहीं कि आप जिम गए और फिर शाम को आके आपने गुलाब जामुन खाए, वो तो चलेगा नहीं। तो अच्छे से खाएं, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, बस यही 2 चीज़ें हैं। एंड ऑनेस्टली ट्राई एंड बी हैप्पी, बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने काम को, मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ। आई लुक एट माई वर्क एज माई वर्शिप, वर्क इज़ वर्शिप बोलते हैं ना। तो मैं अपने काम को बहुत अहमियत देती हूँ और मैं अपने काम के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द वर्क दैट आई गेट एंड आई लव एवरी मोमेंट ऑफ माई वर्क। तो वही मेरा राज है और कुछ नहीं। राज ये है कि कोई राज नहीं। नहीं, आपके सारे राज जो हैं वो हम रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोला कि हैप्पीनेस, अपने काम को अपना पैशन मानिए, अच्छा खाइए और अच्छी एक्सरसाइज करिए और खुश रहिए। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।